Hello, all. I'm Sonal, and you are watching the series of success stories brought to you by Indian Achievers Forum. As you all know, the series is all about the prominent achievers who has made India proud in some way or the other. So, today we have Mr. Vinay Jain, who is the founder and CEO of VMS Bathware Private Limited. But before we start the conversation with him, let's have a look at a very small video telling you about what we actually do. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. Hello, Mr. Vinay. Hi, Sonal. Okay, so how are you? Yeah, I'm good. Okay, so first of all, please tell me something about you and your professional role. About me, as you know, that I'm Vinay, and I'm the MD and CEO of VMS Bathware Private Limited. We are manufacturers of bath fittings and sanitary and have the market for all over India. So this is the short introduction of me. Okay, well, that's great. Okay, so how did the idea of starting this particular business came in your mind? This one, you can say that we can go 15 to 16 years back. कहें तो इंडिया में मैंने देखा था कि इतना अभी सैनिटेशन है नहीं बाथरूम्स लोग जैसा अभी पिछले कुछ सालों से हमारे पीएम भी इनिशिएटिव लेकर ड्राइव चला रहे हैं तो तकरीबन 15-20 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट करना था तो मैंने कुछ स्टडी की और देखा कि अभी हमारे यहाँ पर सैनिटेशन बहुत ना के बराबर है और अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं तो इन फ्यूचर ये बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा और सेकंड थिंग थी जब मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च किया तो प्रोडक्ट या तो बहुत हाई ब्रांड्स के या फिर बिल्कुल लोअर क्वालिटी तो मुझे लगा कि अगर हम इसके बीच का सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद कंपनी को सक्सेस भी मिलेगा तो ये सब सोचकर बिजनेस का आइडिया आया और ये स्टार्ट किया Okay, well, I must say that it's a great initiative and जैसे आपने mention किया कि sanitization के लिए आप work कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक initiative है from you. Okay, so अगर हम आपकी journey के बारे में बात करें आज talking about your journey, what sort of challenges you faced and also how did you find the solutions to those challenges? कहें तो चैलेंजेस तो काफ़ी रहे आई बिलोंग्स टू राजस्थान और मैंने राजस्थान से आके बिजनेस स्टार्ट किया था यहाँ पर दिल्ली में बिल्कुल नया था काफ़ी कुछ था समझने को देखने को तो चैलेंजेस काफ़ी रहे लेकिन बस यूँ कहिए कि था कि अब आ गए हैं घर से तो कुछ ना कुछ करना है और जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए और ओवरकम होते रहे और आज ठीक ही कर रहे हैं बिजनेस Well, I must say that challenges are the part of life, sir. And आपने इन सभी challenges को overcome किया and you are truly an achiever right now. Yeah. Okay. So now kindly elaborate us more about the product and services that your organization offers. As you mentioned about the sanitization and all, kindly elaborate about the product. Yeah. It's about sanitation. So we make sanitary ware like bathroom fittings, sanitary ware, kitchen sinks, all kind of bath fittings from basic to premium. And the main thing is that we make, you can say that premium yet affordable. तो हम लोगों का जो प्राइस सेगमेंट रहता है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है लेकिन जो सेगमेंट है वो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करते हैं एंड अगेन मैं वही कहूँगा कि जो हम लोगों ने या मैंने शुरू में फील किया था कि एक मार्केट में गैप था एक हाईली ब्रांडेड के बीच में और या फिर बिल्कुल लोअर क्वालिटी के लिए तो वो सेगमेंट हम लोगों का फिल करना मेन एम रहता है
तो कोई भी अगर प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन करते हैं या डेवलप करते हैं तो फर्स्ट एम रहता है क्वालिटी, लेटेस्ट इनोवेटिव डिजाइन्स, देन अफोर्डेबल प्राइस. Okay, so moving ahead, what future goals you aim or what sort of future plans you have for your organization? फ्यूचर प्लान अभी हम लोग कहें तो जैसा कि अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ इंपोर्ट भी हमारे सेगमेंट में होता है और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि 100% हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें और तकरीबन 90% मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों की इंडिया ही है. और साथ में जो नेक्स्ट हम लोगों का मूव होगा वो एक्सपोर्ट के लिए. जैसे हम नेबर कंट्री नेपाल में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है. तो हम लोगों का अभी प्लान है इसके बाद में यूके एंड सम पार्ट ऑफ यूरोप के लिए. तो नेक्स्ट प्लान हम लोगों का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ में एक्सपोर्ट का रहेगा. Okay, well, I wish you all the very best for all your future goals. Okay, so now talking about Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So, what's your organization working on it, and what are your opinions on Atmanirbhar Bharat Abhiyan initiated by our Honorable Prime Minister? यस, काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है और होना भी चाहिए. इवन इंडिया में अगर हम डेमोग्राफिकली बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर यूथ पॉपुलेशन है तो वो इंडिया में है. बस चाहिए कि एक हमारी ऑर्गेनाइज कर अच्छे से यूथ को और हम इंडस्ट्री इंडिया में ही डेवलप करें. तो हम लोग खुद VMS बात फेयर इसके लिए एक नेक्स्ट ईयर में नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी प्लान किया है और नेक्स्ट ईयर में हम लोग उसे स्टार्ट भी कर देंगे. जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि हम लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा प्रोडक्शन इंडिया में ही बढ़ाना. तो अभी तो यही प्लान किया है. Well, it's great that आप आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं. Okay, so moving ahead, what were your feelings on winning Indian Achievers Award? First of all, तो thanks for Achievers Award. कि Achievers Award ने हम लोगों को यह अवार्ड दिया और इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस अवार्ड. और अच्छा लगता है अगर कोई किसी मेहनत कर रहा है और उसको अगर एप्रिसिएशन भी मिलता है तो बेशक उसे पसंद तो आता ही है. थैंक्स अगेन फॉर दैट. Well, it's our pleasure. Okay, so अब हम बात करते हैं अगर आपके सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में. What are your social contributions and what are you doing for the society as a businessman? As a businessman and as an industrialist, first of all तो हम लोगों की अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पॉल्यूशन कंट्रोल. तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कि हम जो भी नेक्स्ट प्लांट हो या जो भी हम लोग अपने इंडस्ट्री में काम करें. और सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह की इंडस्ट्री में डेवलप करते हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कोशिश रहे कि 0% एफ्लुएंट हो, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लगाएं. तो सेम VMS बात फेयर का भी यही एम है. और सबसे पहले तो मैं इसी को ही एक तरह से सबसे बड़ा सोशल कोज मानूंगा या सोशल आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि अगर आप इंडस्ट्री को नॉन पोल्यूटिंग रखें और उसे मेंटेन करें तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं. Well, it's really great that you are spreading awareness about the pollution control. Okay, so before concluding this lovely session, what message or mantra would you like to give to today's generation who wants to become an entrepreneur someday? For today's generation कहना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करें. करेंगे तो होगा भी जरूर. और गिव अप ना करें. अभी जनरेशन में हालांकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है मेरी जनरेशन में भी, लेकिन फिर भी मैंने फील किया कि इनिशिएटिव लेकर गिव अप बहुत जल्दी करते हैं, नहीं होगा या फिर उस चीज़ को एक शॉर्ट वे में निकलने का. तो मेरा बहुत शॉर्ट में यही कहना रहेगा कि गिव अप ना करें, कोशिश करें, थोड़ा टाइम लगेगा. ऑल गुड थिंग्स टेक सम टाइम. तो काफी अच्छा कर सकते हैं अगर लगे रहें तो. एक बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया आपने विनय जी. सो थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस. इट वाज लवली मीटिंग टू यू.
Thanks, Sonal. Same here. Thanks again.